बच्चे को।
हाँ बेटा, गुड इवनिंग। Good evening, sir. हम्म। बेटा सब आ गए क्या? So what I taught in the last lecture, beta? Let me know about that. What I taught in the last lecture. So beta, today start graph of inverse trigonometric function. Okay. So beta, basically I will start the today topic. The topic is today topic is beta graph of inverse trigonometric function. So this is our topic for today's session, graph of inverse trigonometric function. So in the last lecture, I also discussed to you graph of trigonometric function. So today I will discuss here, guys, graph of ITF, inverse trigonometric function. So basically that is very important portion here. So today I will discuss better graph of ITF, inverse trigonometric function. Okay, guys. So let's start from basic first, because you people are no any idea about the ITF function. So today start basically better graph of inverse trigonometric function. Okay, got it or not? Yes, sir. Yes, but basic funda is that beta. So basic funda is that we have to consider na beta, if sin y is equal to x, then you can easily say that sir, y is equal to, oh wait 1 second, first wait one second. Before starting this session na, I will discuss some theoretical analysis, because you people have no any idea about the inverse function. So firstly discuss some basic of inverse function, and then we move forward. Okay. Okay, beta. So beta, first thing is that beta, T inverse of x is an angle. T inverse of x is an angle trigonometric, is an angle trigonometric ratio of which is equal to
which is equals to x and this must lie, and this must lie in principal range, in principal range. So basically beta, T inverse of x is an angle trigonometric ratio of which is equal to x, and this must lie in principal range. Okay, so guys, just wait 1 second, because I will discuss one important thing with you, and this is beta. This is here. This is here principal range. Principal range. Okay. And okay. So for group 1, for group 1, for group पर मतलब sin tan and cosec. Sin, tan and cosec. So their principal range is beta minus pi by 2 to pi by 2. Minus pi by 2 to pi by 2. Okay. Let us just assume it by the graphical analysis. So observe here. Let's say beta, this is the axis. Okay. So this is the beta y axis, and this will be beta x axis. Okay. So minus pi by 2 means pi by 2 beta ki, let's say beta, from this is here to here. Here to here. Okay. So you can say this is here to here. Okay. So 0 to pi by 2, yeah, 0 to minus pi by 2. Okay. So for sine function, sine inverse, tan inverse, and cosec inverse, their principal range is beta minus pi by 2, pi by 2. मतलब बेटा माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच में बेटा डांस करेगा, है ना, इसके बाहर बेटा डांस नहीं करेगा। और बात करते हैं ग्रुप 2 का। फॉर ग्रुप 2, ग्रुप 2 में बेटा आता है आपका कॉस, कॉट एंड सेक। कॉस, कॉट एंड सेक। So this is better lie between 0 to pi. This will be better from 0 to pi. 0 to लेके बेटा pi के बीच में होगा, और you can understood by this axis of system. तुमको पता है 0 से पाई कहां से कहां होगा, तुम अच्छे से जानते ही हो। मतलब 0 से पाई का मतलब है बेटा यहां से लेके यहां तक, है ना। ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, तुम्हारा ओरिजिन है। ठीक है बेटा। तो बेटा ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। तो प्रिंसिपल रेंज बेटा आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, विदाउट प्रिंसिपल रेंज का बेटा कोई काम नहीं चले। तो बेसिक सी बात थी बेटा, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे की तरफ। जैसे बेटा बात करें अपन फर्स्ट थिंग का, फर्स्ट ग्राफ, इफ साइन y is equal to x, so then you can easily say beta basic of inverse y is equal to sin inverse x। पता ही होगा तुमको,
ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन, under certain conditions. So let us one thing, just draw the graph, draw the axis here. पहले तो बेटा एक्सिस को ड्रॉ करना है, और देखो बेटा इस सब ग्राफ को आपको याद करना पड़ेगा, जस्ट टू रिमेंबर दिस ग्राफ। ओके बेटा, आपका ग्राफ कैसे होगा बेटा, तो ओके बेटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू sin x, है ना। तो आपको यहाँ पे बेटा इस ग्राफ जो है ना बेटा, किसका ग्राफ है बेटा, y बराबर sin x। दिस इज 1, this will be -1, this is 0, okay, and productively this will be -π/2, and this will be, sorry, +π/2, and this will be -π/2. Okay, so you can easily do this coordinate here. This is coordinate is 1, π/2. Very simple, no any confusion here. You can easy to find out the coordinate, basic thing है बेटा, and this is बेटा -1, -π/2, है ना। तो दिस इज द बेटा फाइनल ग्राफ। ओके, देखो तुमको पता है ना बेटा, देखो तुम तो इतना तुम जानते हो बेटा कि सर साइन फंक्शन जो है किसके किसके बीच में होता है बेटा, वो -1 से लेके 1 के बीच में होता है। अरे पता है ना तेरे को, पता है, लेकिन तुम यहां से तुम क्या जानते हो, यहां से तुम देखो साइन y किसके बराबर है, x के बराबर, बट साइन y इज इक्वल टू x। तो फाइनली तुम्हारा x कहां से कहां तक होगा बेटा, x भी तुम्हारा -1 से लेकर 1 के बीच में होगा। तो देखो बेटा, यदि मान लो कि साइन y की वैल्यू -1 है, सबसे छोटी वैल्यू मेरी -1 है, तुमको पता होना चाहिए बेटा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/2 पे तो इसकी वैल्यू बेटा -1 आ रही है, देखो ना -π/2 पे क्या आ रही है, -1 आ रही है बेटा। अच्छा, दूसरी बात, साइन y की वैल्यू यदि बाय द वे 1 होती है ना बेटा, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, y इज इक्वल टू π/2 होगी बेटा, π/2, है ना। ठीक है, तो हम यदि इस फंक्शन की डोमेन की बात करें, डोमेन की बात, बेटा डोमेन तुमको मैंने पहले पढ़ाया था कि पूरी ग्राफ x में कहां तक गई है, तो डोमेन बेटा क्या हो जाएगा, डोमेन बेटा हो जाएगा -1 से लेके 1, रेंज क्या हो जाएगा बेटा, रेंज क्या हो जाएगा -π/2 से लेके बेटा +π/2। That is the beta full explanation about the graph. Okay, so basically beta sin inverse x के बारे में, that is the complete information about the sin inverse x. Okay बच्चों, और भी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हो तो बताना, मैं उसमें कुछ और बता सकता हूँ तुमको ज्यादा इंफॉर्मेशन। I think that is sufficient information to you. Okay. In the next chapter, topic called inverse trigonometric function, I will explain each and everything. This topic is called function, so no need to explain, no need to postmortem of the graph here, है ना। ग्राफ का यहाँ पे पोस्टमास्टम नहीं करेंगे अपन बेटा, बस जितनी जानकारी अपने को चाहिए उतनी कलेक्ट करके अपन मूव कर लेंगे, है ना। चलो, सेकंड ग्राफ इज दैट बेटा, जस्ट नोट इट डाउन फास्टली, नोट करो बेटा इसको। आई थिंक बेटा जयंत,
Jayant, this is your first class, na? Yes, sir. In which class do you read? 12, sir. I'm in 12. 12. Which school? Fiji, sir. Call. Which school? Fiji, sir. Okay, okay, okay. I think ये सब समझ में आ रहा है तुमको जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर, समझ में आ रहा है. थोड़ा सा तुम्हारा अभी एक दो क्लास दिक्कत हो सकता है क्योंकि तुमने लेट ज्वाइन किया, टॉपिक्स रिलेटेड आगे निकल चुके हैं. फिर भी यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड हैव एनी डाउट जस्ट कंसल्ट मी पर्सनली. ओके. Okay, sir. सो बेटा शमिता, Yes, sir. समझ में आ रहा है तुमको? Yes, sir. चलो नोट करो. बेटा तुमने बोला कि तुमको अब बेटा ऐसा भी हो सकता है आप लोग सवाल पूछोगे कि सर आपने यहाँ पे -3/3 -π/2 -π/2 माइनस, आपने इस सब रेंज क्यों नहीं लिया? तो देखो बेटा साइन इनवर्स की रेंज ही होती है बेटा -π/2 से लेके π/2. तो मैं बेटा कहाँ से लूंगा, है ना? समझे कि नहीं समझे? ये भी बात बता दूं क्या बेटा? चलो मैं लिख ही देता हूँ, आप लोग नोट करके लिख लो. we can restrict the values of y in any of the intervals -3π/2 to -π/2. comma -π/2 से π/2 या -π/2 से लेके you can say that 3π/2 etc corresponding to each such interval we get a branch of the function y बराबर sin inverse x. The branch with range -π/2 से π/2 is called the principal value branch, whereas other intervals
as range give different branch, range give different branch of साइन इनवर्स। तो हालांकि इस मैटर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस सिंपल से बात है ना। एक बात बेटा तुम और याद रखना कि न्यूमेरिकली list value numerically list angle is called the principal value of the function so I think that is not very much important, but still remember, याद रखना। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। So the main branch is from -2 to -π/2 to +π/2. या -π/2 से लेके π/2। So where do we get the other branches from? बेटा what happened बेटा actually no need to take the other branches because -π/2 से लेके π/2 इसका रेंज ही है बेटा, तो रेंज के बाहर तो जाएगा नहीं ना बेटा। ग्राफ जो भी परफॉर्म करेगा -π/2 से लेके π/2 के बीच में करेगा, है ना। Could you repeat it? समझी? सर फिर से बोल सकते हैं? क्या बेटा? Sir, could you say it again? बेटा ग्राफ जो है ना साइन इनवर्स एक्स की जो ग्राफ होती है ना बेटा, देखो तो -π/2 से लेके π/2 के बीच में होती है, तो मैं दूसरा कोई भी इंटरवल ले लूं तो इस रिस्ट्रिक्ट करेगा उसको, है ना। समझे कि नहीं समझे? समझे बेटा? हाँ सर। हाँ, और लिस्ट एंगल जो होता है उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। किसी भी इनवर्स फंक्शन पे जो लिस्ट एंगल होता है ना -π/2 जो होगा बेटा, आप इसको ऐसे बोल दो कि बेटा जो लिस्ट एंगल है ना, यहाँ पे इसको ऐसे बोल दो प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे बोल दो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। लिस्ट एंगल जो होता है बेटा वो प्रिंसिपल एंगल होता है ना। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। सेकंड है बेटा, सेकंड ग्राफ इज y बराबर cos इनवर्स x, है ना। तो देखो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो अलग तरीका से कि लेट cos y is equal to x, then y is equal to cos inverse of x under certain condition, under certain conditions। ठीक है बच्चों, तो अब इसी ग्राफ देखो, पहले ग्राफ समझो ग्राफ होगा कैसे। देखो इसका ग्राफ जो होगा ना बेटा, सिंपल है ना, दिस इज द ग्राफ। थोड़ा सा करेक्टिफाई मैं कर देता हूं। तो दिस इज योर ग्राफ, सो दिस विल बी -1 origin 1, this will be what, pi
this will be minus pi by 2. Okay, boss. So what is the coordinate of this function? So this coordinate will be what? This is 1, 0. Okay. And this coordinate will be what? Let me know. -1, y. -1, 5. है? अब देखो cos इनवर्स cos y जो है ना, cos फंक्शन तुमको पता है -1 से लेके 1 के बीच में होता है, तुम अच्छे से जानते हो। अब cos y को हम x तो बोल ही सकते हैं क्योंकि मैंने x, तो मैं x तो बोल ही सकता हूँ। रीजन क्यों? रीजन इज टोटली क्लियर, क्योंकि अरे देखो ना रीजन तो क्लियर ही है, तो क्या बताना। ऑल्सो क्या cos y यदि -1 है तो फिर यहां से क्या होगा, y बराबर 5 होगा, है ना। और cos y यदि 1 है तो यहां से क्या होगा, y बराबर 0 होगा। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन। अब एक बात करते हैं डोमेन का। डोमेन बताओ क्या होगा इसका, डोमेन हिसाब किताब लगा के बताओ। -1 से 1 होना चाहिए, क्लोज्ड। क्या समिता? यस सर। रेंज क्या होगा बेटा? ग्राफ ने कहा गया y एक्सिस पे बेटा, y एक्सिस में ग्राफ गया बेटा 0 से लेके पाई तक। अरे देखो ना पाई तक गया ना बेटा ग्राफ, दिस इज द रेंज, दिस इज योर ग्राफ। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लो इसको। ओके बेटे, चलो थर्ड ग्राफ बनाते हैं। थर्ड ग्राफ क्या बेटा, y बराबर tan इनवर्स x। अच्छा इसको तुम ऐसे ही बोल सकते हो यहां से कि क्या, इफ tan y is equal to x, then y is equal to tan inverse of x, है ना, under certain condition, under certain conditions, है ना। तो तुमको पहले तो ग्राफ बनाना याद रखना पड़ेगा बेटा, सबकी ग्राफ बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये बात आप जान जाओ, क्योंकि दिस इज द फ्रीक्वेंटली यूज्ड ग्राफ। ओके, डायरेक्ट यूज आएगा बेटा आपके कंटेंट के अंदर। है ना, ग्राफ होगा बेटा, है ना। तो दिस इज योर ग्राफ बेटा, y is equal to tan inverse of x, है ना। ओके बच्चों, दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to tan inverse of x। तो तुमको दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, और दिस इज कॉल्ड बेटा व्हाट, पाई बाय 2, मतलब दिस इज कॉल्ड माइनस पाई बाय 2। ओके बच्चों, दैट यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स। ओके,
So that is the easily you can understood here. तो अब डोमेन की बात करोगे बेटो, तो देखो डोमेन में बेटा ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस में भी पूरा गया और वाई में भी पूरा गया है ना। वाई में ग्राफ कहाँ कहाँ गया है, सॉरी वाई में तो बेटा ग्राफ -π/2 से π/2 गया, एक्स में पूरा गया, तो डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन होगा बेटा एक्स बिलोंग्स टू आर, रेंज क्या होगा बेटा, ग्राफ वाई में कहाँ गया बेटा, y belongs to -π/2, ओके, y belongs to -π/2 से लेके π/2, -π/2 से लेके π/2, both are here open. So this is not closed beta, this is open because -π/2 बेटा ग्राफ टच थोड़ी कर रहा है, ग्राफ तो वहां से निकला बेटा, तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड है ना। दैट इज द बेटा tan इनवर्स फंक्शन। I think you have to understood the things properly. Okay. चलो अगल आगे मूव करते हैं। फोर्थ नंबर ग्राफ इज y is equal to cot इनवर्स x। तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि if y is equal to, if y is equal to, sorry not y, if cot y, sorry है ना, if cot y is equal to x, then y बराबर cot इनवर्स x under certain condition, अंडर सर्टेन कंडीशन है ना। तो इजिली ड्रॉ करो ग्राफ को। ओके बच्चों, तो हाँ, तो बेटा ग्राफ जो बनेगा आपका है ना, सॉरी नीचे बेटा एसिम्पटोट नहीं है, सॉरी ये तो कॉट का ग्राफ है ना, ऊपर भी करना पड़ेगा। हाँ स्ट्रेट लाइन सही बना, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए, कर्व हो जा रहा है। चलो ग्राफ जो बेटा बनेगा देखना, ऐसा बनेगा ग्राफ कुछ। पूरा एक्सिस को यहाँ दे दो।
थोड़ा सा ना ड्राइंग ठीक से करना। है ना, थोड़ा सा ठीक से बना लेना बेटा। मेरा थोड़ा सा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है मेरा। दिस इज पाई बाय 2 एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज पाई। तो देखो डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? डोमेन होगा बेटा इस वाले ग्राफ का, एक्स में ग्राफ तो पूरा गया है। रेंज होगा बेटा, तो रेंज होगा बेटा y बिलोंग्स टू 0 से पाई, है ना। y बिलोंग्स टू 0 से, ठीक है बच्चों। फिफ्थ नंबर पे, इफ sec y x then y बराबर sec इनवर्स ऑफ x, है ना। तो इसका ग्राफ भी बहुत इजी है, बस हमको याद रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। इसमें देखो तो ग्राफ जो बनेगा बेटा वो ऐसे बनेगा। ये तो बेटा पाई हो गया, दिस इज पाई, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज 1। बेटा ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। यहां से ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो दिस इज, दिस इज -1, दिस विल बी 1। अब बेटा देखो इस एक्सिस पे कितने ग्राफ है? तो देखो सर इस एक्सिस पे ग्राफ एक है लेकिन ग्राफ की ब्रांचेस दो है ना। ओनली वन ग्राफ इज प्लेस ऑन दैट एक्सिस बट देयर हैव टू ब्रांचेस। ग्राफ बेटा एक ही है लेकिन ब्रांचेस दो है। तो इसका डोमेन बताओ क्या होगा? देखो ग्राफ का डोमेन जो है ना बेटा बहुत सिंपल है, देखना बस देखो ग्राफ कहाँ कहाँ मूव किया। तो देखो ग्राफ तो एक्स एक्सिस में पूरा जगह गया है, लेकिन देखो ग्राफ बेटा -1 और 1 के बीच में नहीं है, पूरे एक्सिस में है लेकिन -1 से लेकर देखो इतने इंटरवल में ग्राफ नहीं है, इतने डिस्टेंस पे ग्राफ कुछ नहीं दिखेगा। बस इस डिस्टेंस पे ग्राफ बेटा नहीं है, यहाँ पे बेटा नो ग्राफ, कोई ग्राफ नहीं है बेटा। तो हम पूरा रियल नंबर लेंगे बेटा, लेकिन यहाँ पे बेटा -1 से लेकर 1 को रिमूव कर देंगे, ओके। -1 से लेकर 1 वाले को बेटा क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। एंड योर लास्ट ग्राफ इज cosec inverse x. This is your last graph, cosec inverse x. cosec inverse x का ग्राफ बेटा कुछ इस टाइप का ही होता है। सिक्स नंबर, if cosec y is equal to x, then y is equal to cosec inverse x। तो बेसिकली बेटा ग्राफ बस आपको याद रखना है, सब खेल बेटा ग्राफ का है ना। तो जो भी गेम प्ले करेगा वो ग्राफ ही करेगा आपके सामने।
चलिए ग्राफ बेटा जो होगा इसका, और बेटा यहाँ पे कहीं 1 आएगा, दिस इज बेटा -1, दिस इज 1। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहोगे, लिखा जाएगा -1, -π, है ना। अरे आ जाएगा ना कोऑर्डिनेट लिखने, कोऑर्डिनेट लिखना कौन बड़ा बात है। दिस इज π/2, ओके, दिस इज 0, दिस इज -π/2, है ना, और दिस विल बी, या दिस विल बी 1, और दिस विल बी -1, है ना। बस हो गया, तो ग्राफ हो गया बेटा। हाँ फिर अब डोमेन लिखना है बेटा, तो डोमेन में देखो ग्राफ एक्स वाले में कितना कवर किया है। डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, तो पूरा रियल नंबर, लेकिन -1 से लेके 1 बेटा रेस्ट्रिक्टेड है। और रेंज देखो बेटा, रेंज रेंज बेटा इसका रेंज हम लोग लिखे थे क्या, इसका रेंज नहीं लिखे बेटा। इसका रेंज क्या होगा, देखो बेटा इसका रेंज क्या होगा ना, तुमको समझाते हैं। देखो इसका रेंज होगा बेटा y बिलोंग्स टू 0 से पाई, नो डाउट, ठीक। लेकिन बेटा देखो 0 से पाई तो होगा बेटा, लेकिन π/2 पे ग्राफ बेटा एक्सक्लूड करेगा, क्योंकि π/2 पे ग्राफ ने टच नहीं किया ना बेटा एक्सिस को, π/2 पे बेटा एक्सक्लूड करेगा, ओके। और सिमिलरली बेटा इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज, तो बेटा इसका भी जो ग्राफ है बेटा -π/2 से लेके π/2 के बीच में, -π/2 से लेके π/2 के बीच में है, लेकिन ग्राफ बेटा 0 पे एक्सक्लूड करेगा, 0 पे, है ना। तो दिस इज द फाइनल ग्राफिकल एनालिसिस अबाउट द, क्या बेटा, व्हाट अबाउट द बेटा इनवर्स फंक्शन। सो रिमार्क्स करके आप एक जगह अच्छा सा टेबल बना लो। टेबल बनाने के बाद ऐसे कर दो, यहाँ पे लिखो फंक्शंस, फंक्शंस, तो इसको ऐसे करो, यहाँ पे लिखो डोमेन, यहाँ पे रेंज, और रेंज को बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ओके। एक, दो, तीन, चार, 5 और 6। चलिए सबसे तो पहला बेटा y बराबर साइन इनवर्स x, तो डोमेन बेटा क्या, डोमेन बोलो क्या होगा, -1 to 1, है ना। चाहे तुम इसको ऐसे ही बोल सकते हो, और क्या, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1, और रेंज क्या हो जाएगा बेटा π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2, या यू कैन इजीली से कि सर y बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2। बच्चों क्लियर है, कोई दिक्कत बेटे। सिमिलरली cos इनवर्स x क्या हो जाएगा बेटा, अब तो आप लोग खुद लिख लोगे ना बेटा, खुद से लिखो, एक बार ट्राई करो बेटा, 5 मिनट ट्राई करो, क्योंकि ये सब चीज आपको खुद से आना चाहिए बेटा देखने। सब मैं ही लिखूंगा तो फिर आप क्या करोगे, करो बेटा ट्राई, खुद से करो बेटा, लिखो।
खुद से लिखो बेटा, जो भी है खुद से लिखो, जल्दी से लिखो सब बच्चे, खुद से बताओ। लिख लिया आपने? अरे सबने लिखा कि नहीं लिखा? देखो cos इनवर्स -1 से 1 होगा बेटा, और ये बेटा क्या होगा 0 से लेके पाई। ठीक है, फिर बात करें tan इनवर्स x का, ये क्या होगा बेटा, ये तो पूरा रियल नंबर होगा, ये -π/2 से लेके π/2। 4 नंबर में बेटा sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x बेटा क्या होगा, sin cos tan, cot लिखो बेटा, पहले cot छूट गया, cot इनवर्स x, तो cot तो बेटा r होगा, और इसका रेंज बेटा 0 से पाई होता है ना? पाई पे बेटा sec इनवर्स x, तो बेटा होगा sec का होगा बेटा -∞ से लेके -1। अभी बेटा देखो मैंने सब कुछ बताया था बेटा आप लोगों को, 1 से इनफाइनाइट, और बेटा दिस इज 0 से लेके पाई, लेकिन बेटा π/2 को एक्सक्लूड करना है ना। लास्ट बेटा कोसेक इनवर्स, क्या करेगा बेटा, सेम सिचुएशन बेटा यहां बनेगा, और यहाँ पे बेटा -π/2 से π/2 क्लोज्ड, यहाँ पे बेटा बस 0 को एक्सक्लूड करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बस आपको याद रखना है, मतलब याद रखना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए, हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, पूरा टेबल का एक एक लॉजिक, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। ओके बेटा, एक बेटा पॉइंट याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट quadrant age is common to the range of
range of all the inverse trigonometric functions. ठीक है, the first quadrant is common to the range of all the inverse trigonometric function. So that is the important point for you. So you have to note down. Okay. बस आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा बेटा, इससे आपका सब काम हो जाए. ठीक है, चलिए बेटा आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं. बेटा एनी डाउट इन द लास्ट एनी लेक्चर? कहीं भी डाउट है तो बताओ बेटा, कहीं डाउट है तो बताओ. इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा? एनी डाउट हियर? एनी डाउट? एनी डाउट प्लीज? इसमें बेटा हाँ बोलो बेटा. बोलो बोलो बोलो. No doubt, sir. ओके. Here I will discuss it in the systematically order, so no any doubt here I think, but चलो बेटा तो ओके डन ना. Thank you all of you. Okay, let's meet you tomorrow. Thank you, sir. Jayant, Madhusudan, मधुसूदन यस सर. पढ़ाई कर रहा है अच्छे से? यस सर. चलो ठीक बेटा, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर. ओके.